Shri Vaishnav, I'd like you to please join us on stage. We look forward to your thoughts, sir. ओके. आमची मुंबई कशा आहेत? बरा आहे. मैंने कहा बड़े बड़े अभी स्टॉलवर्ड्स आए हैं, अच्छे अच्छे ऐसे लोग आए जिनको देखने का ही सबको मज़ा आता है. अब ऐसे में मुंबईकर का मन कैसे जीता जाए? एक भाषण दूंगा, शायद आपके मन में आएगा नहीं आएगा. सो दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड दिस प्रेजेंटेशन. ओके, रेडी? चलो लेट्स गो. ये जो ब्रिज देख रहे हो आप, why we put it on the opening slide, this is higher than the Eiffel Tower. And that is the direction in which we have to go. We cannot do incremental change. We should not be aiming at incremental movements. We have to look at what is the best in the world and then do better than that. That is our goal. So I'll start with railways, then move on to telecom, and then towards IT, okay? 800 passengers carried every year, 800 crore. 800 crore. आप कहोगे 140 है पॉपुलेशन, 800 कैसे हुए? बहुत लोग हैं जो एक से ज़्यादा बार ट्रैवल करते हैं. 22,000 plus trains every day. 7,300 stations, massive network. 12 लाख एम्प्लॉय. सोचो जब अप्रेजल का सीजन आता है तो क्या हालत होती होगी मेरी every year, right? So massive, 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 massive network. How do you transform a network of this size? How do you transform an organization of this complexity? How do you ensure that people's dreams, people's aspirations, people's expectations from this organization change and they are met in an organization which is as complex as Indian Railways? This is where Prime Minister Modi ji put his entire focus and made significant changes in the last 8 years. I'll talk about some of those changes here. First and foremost is change the passenger experience. How do you change that? Start with railway stations. Every railway station is the first place where a passenger interacts with the railways. पहले जाता है बंदा पैसेंजर रेलवे स्टेशन में. क्या आपके सामने जो फोटो है, दिस इज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इन भोपाल. Totally transformed, totally changed, and we learned a lot out of this. एक आप normal building बनाते हो, normal building will not have those challenges which are faced by a railway station. Vibrations, ट्रेन की गड़गड़ाहट, साउंड, टेम्परेचर डिफरेंस, ट्रेन तेजी से जा रही है, स्लो जा रही है, कोल की ट्रेन जा रही है, पैसेंजर की ट्रेन जा रही है. It's very complex. Believe you me, it's really complex. I'm an engineer. I can vouch that it's really complex compared to even constructing a 50-story building is today a mechanized thing. Stations are difficult. So we learned from this. We learned from, what are the things that we learned? Create a roof plaza. और इसमें PM साहब का personal input रहा, because urban spaces में, and who would know better than Mumbai, urban spaces में जहाँ पे space की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत कमी रहती है, station is bang in the middle of a city. How do you create new space? How do you make sure that the station is able to combine both sides, join both sides of the city and integrate them rather than dividing them? तो ये roof plaza का पहला experiment हुआ. Then we created this Gandhinagar Capital Station. This tall building that you see here, this is right on the top of the tracks. आपके जो tracks है, tracks के ऊपर ये बनी हुई है, right? So this is without asking for even 1 square inch extra space, this building got created. This again taught us many things. So this is where now we are going. Look at this place. What is this place? Guess? Prize किसके लिए है? Delhi railway station. चलो भाई, give him a big round of applause. क्या नाम है आपका? मुखर्जी दादा के लिए. Great. This is Delhi railway station, right? And you'll say that आप ऐसे ही picture दिखा देते हो. नहीं साहब,
इसका कंप्लीट डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, टेंडर डॉक्यूमेंट बन चुका है, टेंडर डॉक्यूमेंट निकल चुका है, 38 परमिशंस जो लेनी होती है वो सारी की सारी परमिशंस ले ली है, फ्रॉम डीडीए, फ्रॉम दिल्ली पुलिस, फ्रॉम अर्बन आर्ट्स कमीशन, 50 जगह से आती है परमिशंस, यूटी पैक, उन सब से परमिशन ले ली है और इसका टेंडर मार्च के सेकेंड वीक में अवार्ड होने वाला है। इमेजिन नाउ दीज आर दी टू ग्लोब्स जो आप देख रहे हो ना, ये डोम और वो वाला डोम, दीज आर ऑन टॉप ऑफ द ट्रैक्स। जो ट्रैक्स है, ट्रैक के ऊपर है ये दोनों के दोनों डोम्स। इसके अंदर मैसिव रूफ प्लाजा इनसाइड, 4 फ्लोर्स ऑफ रूफ प्लाजा। एंड कितनी जमीन नई क्रिएट हो रही है, न्यू दिल्ली स्टेशन वाले जानेंगे तो 50 एकड़ न्यू स्पेस इज गेटिंग created inside the station. Imagine. That's the thought process with which railways is moving ahead, right? Look at this. कितना बड़ा fundamental change आता है when you have all your traffic which comes to the station and goes out of it is all on elevated roads. Completely elevated roads पे. Makes a phenomenal difference in the entire city's landscape. अहमदाबाद, कोई है यहाँ पे अहमदाबादी, गुजराती है कोई? केम छो? यहाँ नहीं पूछना चाहिए, यहाँ तो केवल कशा है ही पूछना चाहिए। कंप्लीटली न्यू वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, टोटली मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। आपने जो येलो दिख रहे हैं ना, ये येलो सारे सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे येलो प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट? इसके ऊपर पिलर्स लिए, पिलर्स के ऊपर एक फ्लोर बनाया, कंप्लीट एलिवेटेड रोड नेटवर्क बनाया, उसके ऊपर और फ्लोर लिया पिलर्स लेके, कंप्लीटली मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। क्योंकि चैलेंज बिफोर अस इज इन आवर सेटअप वी कैन नॉट स्टॉप। अगर कोई दूसरी कंट्री होती है, हमारी नेबरिंग कंट्री, तो वो 3 साल के लिए सब कुछ बंद कर सकता है, कोई चूंचा नहीं करेगा। हमारे तो आप लोग एबीपी न्यूज़ में घंटी बजाओ हो जाएगा हमारा। तो कंप्लीटली एंड सब जगह कहीं ना कहीं हेरिटेज का यूज किया, राइट? दिस इज योर, कोई गैस करो भाई क्या है ये? प्राइज मिलेगा, बड़ी ताली। मोडेरा सन टेम्पल, राइट? मेरे लिए ताली बजा लो। ब्यूटीफुल स्टेशन, बहुत अच्छा, और खूब बड़ा सा अंदर रूफ प्लाजा। आमची मुंबई, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। इसका कंपटीशन किससे है बताओ जरा, कोई गेस करो। एक्सेलेंट, इनके लिए प्राइज बहुत जोरदार। उससे बेटर बनाना है, राइट? यस, हम लोगों ने कंपटीशन किया विच इज द मोस्ट कंटेम्प्रेरी स्टेशन व्हेन वी लुक एट छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। लंदन का जो किंग्स क्रॉस, लंदन सेंट्रल कहते हैं जिसको, दैट्स द स्टेशन विच इज कंटेम्प्रेरी टू दिस। उसकी डिज़ाइन हमने ली सब जगह से, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट्स को लगाया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को लगाया, और कहा कि यार देखो 4 साल के बाद में लोग लंदन से यहाँ आके इस स्टेशन को देखने आए, वैसा बनाना है। तो दे वर लाइक अच्छा, लेकिन जो डिज़ाइन बनाई है जबरदस्त, चक्कास। बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बने, इतनी अच्छी डिज़ाइन बनाई है, और कंप्लीट इसका टेंडर कंप्लीट हो चुका है। इसका भी मिडल ऑफ द मार्च टेंडर अलॉट होगा, एंड एवरी अथॉरिटी इन मुंबई हैज़ गिवन इट्स परमिशन, एंड आई थैंक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड डीसीएम साहब, दे आर पर्सनली मॉनिटरिंग डे बाय डे इसका कंप्लीट। और दूसरी बात, हमारे जीएम साहब बैठे हैं यहाँ पे, एक भी गाड़ी आपको रोकने के लिए मना, कोई गाड़ी कैंसिल नहीं होगी, राइट? इतना बड़ा चैलेंज कैसे करेंगे, लेकिन कर रहे, लगे हुए सबके सब इसमें। Huge space will get created, movement of people will become very smooth, totally new way of looking at things. मैंने इस स्टेशन में आधे टाइम तो लगेगा कि यार यहीं बैठ के थोड़ी देर गपशप कर लेते हैं, राइट? और खासकर जब जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए, हमारे जैसे। Lots of space getting created, lots and lots of space getting created. This is the night view of CSMT.
अच्छा है, मजा आया देखने में? जब बनेगा तब क्या मजा आएगा सोचो। अभी काम चालू होने वाला है, राइट? गुड। एंड ऐसा नहीं कि केवल मुंबई और दिल्ली और अहमदाबाद, नहीं, पूरे देश भर में कंप्लीट पीएम साहब ने टारगेट दिया है कि देश में हमारे रेलवे पैसेंजर्स का जो एक्सपीरियंस है वो टोटली ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। चेन्नई अलम्बुर, एगमोर लिखते हैं उसको, बोलते हैं अलम्बुर। कानपुर, जयपुर, जयपुर तो हेरिटेज है, राइट? ग्वालियर, अगेन देखो ये पुराना स्टेशन है जो एग्जिस्टिंग है अभी, इसको पूरे को प्रिजर्व करते हुए हाउ डू यू क्रिएट अ टोटली न्यू स्ट्रक्चर, राइट? इसको प्रिजर्व भी करना है, हेरिटेज को प्रिजर्व भी करना है। पीएम साहब कहते हैं विकास भी और विरासत भी, विरासत भी विकास भी, सो वी हैव टू कंबाइन बोथ। तो ऐसा करके इसका डिजाइन बना। और ये प्रयागराज, इसमें जो चैलेंज है वो चैलेंज दुनिया के किसी स्टेशन में नहीं हो सकता। कुंभ के टाइम में एक दिन में 1 करोड़ लोग एक साथ, 1 करोड़ एक साथ। तो इसकी जो डिजाइनिंग की ना, उन ट्रांसपोर्ट प्लानर्स को सल्यूट है बॉस। माने उन्होंने किस तरह से इसमें पैसेंजर मूवमेंट क्रिएट किया है, इट्स गोइंग टू बी अ हार्वर्ड केस स्टडी, पक्का। माने हार्वर्ड नहीं होगा, MIT केस स्टडी होगा इंजीनियरिंग का। सो it's a really great design which has been done in this, and I feel really proud about this because इसको डिजाइन करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। इसका भी काम चालू हो गया ऑलरेडी। सूरत, वाई आई शो दिस स्लाइड इज, पीएम साहब ने हमेशा एक चीज कही कि जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनका एकदम सीमलेस इंटीग्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई स्टेशन से उतरे उसके बाद में ढूंढते रहो लिफ्ट किधर है, ढूंढते रहो मेट्रो किधर आएगी, ढूंढते रहो बस किधर है। इनका सीमलेस इंटीग्रेशन हो, एब्सोल्युटली सीमलेस इंटीग्रेशन हो, अच्छी साइनेजेस हो, क्लियरली पता चल जाए कि ये मेट्रो है, इस तरफ से कट चल के चल गए, इधर से बस मिलेगी तो कट चले गए बस की तरफ, राइट? इट हैज टू बी दैट काइंड ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसा पीएम साहब ने, मैं आपको बताऊं बॉस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जब करीब 50 के आसपास स्टेशन की डिज़ाइंस हम लेके गए, करीब 2.5 घंटे का प्रेजेंटेशन पीएम साहब ने देखा। 2.5 घंटे के प्रेजेंटेशन के बाद में, भाई जनरली बॉस का ये होता है कि इफ ही लाइक्स इट, इफ ही इज गुड विद इट, देन हिल से आगे बढ़ो। उस दिन एकदम हम लोग लाइक 2.5 घंटे के प्रेजेंटेशन, अच्छा हम लोग तो सोच रहे थे क्या काम करके गए, तो काम लेके गए, लेकिन बॉस ने कहा नहीं, ही वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद इट। हम पूरा एकदम मुंह लटका के बाहर निकले। 11 o'clock इन द नाइट आई गेट अ कॉल फ्रॉम हिम, बोलते अश्विनी ये तुम्हारी डिज़ाइन आज के लिए अच्छी है, लेकिन मुझे डिज़ाइन चाहिए 50 साल आगे की सोच के बनाओ। दैट्स द विजन विद व्हिच ही इज वर्किंग। उन्होंने कहा सब में रूफ प्लाजा लाओ, बिकॉज अर्बन स्पेस बहुत डिफिकल्ट है, नई अर्बन स्पेस क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है। एंड रेलवे के साथ तो उनका इमोशनल कनेक्ट है, ही हैज़ बीन, एक बचपन से रेलवे से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि देखो स्टेशन जहाँ है, आधा शहर उधर है, आधा शहर इधर है, इन दोनों शहर के हिस्सों को जोड़ने का तरीका बनाओ। तो वी वर लाइक, आई मीन ऐसी फाइन चीज़ें, अर्बन स्पेस क्रिएट करो, जोड़ने का तरीका बनाओ। और क्या स्टेशन केवल पैसेंजर्स के लिए होना चाहिए? बताओ, क्या स्टेशन केवल पैसेंजर्स के लिए होना चाहिए? नहीं, स्टेशन तो पूरे शहर का होना चाहिए। हम लोगों ने जितनी डिज़ाइनें की थी वो केवल पैसेंजर सेंट्रिक थी। पीएम साहब ने कहा नहीं, स्टेशन पूरे शहर की अमानत है, शहर का सेंटर है, इसको डिज़ाइन करो सिटी सेंटर की तरह। आंखें खुली, सारी जितनी पुरानी डिज़ाइनें थी डाली श्रेडर में, और वापस नए टीम को, इस बार हम लोग टाउन प्लानर्स की टीम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। पहले केवल आर्किटेक्ट्स को और इंजीनियर्स को दिया था, इस बार टाउन प्लानर्स को लेके आए टीम में, और उनको लेके जब डिज़ाइंस की तब सब जगह इस तरह की डिज़ाइन बनी जिसमें बस स्टैंड है, मेट्रो है, आपका ऑटो और कार की ट्रैवलिंग है, मल्टी मॉडल, एक मल्टी लेवल कार पार्क है। तो एक तरीके से कंप्लीट सभी मोड्स का इंटीग्रेशन जहाँ पे पॉसिबल हो उस तरह से सारे स्टेशंस का डिज़ाइन हुआ। बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, सफदरजंग दिल्ली में बन रहा है ये, चंडीगढ़,
दिल्ली कैंट पूरा दिल्ली कैंट का अलग ही चैलेंज था। इसमें आपके पास आने जाने का रास्ता नहीं है, तो इसको कंप्लीटली चारों तरफ से एलिवेटेड रोड से एनसर्कल किया, चारों तरफ से एलिवेटेड रोड से इसको एनसर्कल किया, जिससे कि आपको नीचे जाना ही नहीं पड़ेगा, नीचे जाने की जगह ही नहीं है, तो आपको ऊपर हवा में क्रिएट करनी पड़ेगी ज़मीन। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही चैलेंजिंग था ये प्रोजेक्ट। फिर ऐसा नहीं कि बड़े बड़े शहर, न्यू जलपाईगुड़ी, सब जगह पूरे देश भर में जम्मू तवी, अगेन हमारी हेरिटेज के एलिमेंट्स को हमने यूज़ किया इसमें, रामेश्वरम, छोटे शहर बड़े शहर। ये तो रिपोर्ट कार्ड पीएम साहब का ऐसा है ना कि यहाँ तक काम करके लेके जाओ, बोलते यहाँ तक करो, यहाँ तक काम करके लेके जाते यहाँ तक करो। तो अब तो हम ऊपर ही देखते हैं। ही इज रियली लाइक, होना भी चाहिए, तभी जाके देश आगे बढ़ता है, वरना अगर हम सेटिस्फाई हो जाए, छोटी छोटी चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाए तो देश आगे नहीं बढ़ पाता। ही ऑलवेज मेक्स अस थिंक बिगर देन व्हाट वी हैव एवर थॉट। मतलब जहाँ हमारी वो अपनी फिल्म में एक डायलॉग था ना कहीं पे, जहाँ लाइन जहाँ हमारी थॉट प्रोसेस खत्म होती है, वहाँ से बॉस की थॉट प्रोसेस चालू होती है। आई विल कम टू वंदे भारत। ये एक ट्रेन है जिस ट्रेन ने दुनिया में हलचल मचा ली है। आप में से कितने लोग वंदे भारत में ट्रैवल किए अभी तक? कैसा एक्सपीरियंस है, आप बताओ? वंडरफुल एक्सपीरियंस। झटके लगे कहीं? बिल्कुल नहीं, वेरी स्मूथ। नॉइज लेवल कितना था? पता ही नहीं चलता। एक्सीलेंट, ताली बजाओ यार इनके लिए सबसे। पीएम साहब ने 2017 में बोला कि अपने को वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनानी है, लानी है इंडिया में। देखो पूरा कॉन्टेक्स्ट देखो, वेरी वेल थॉट थ्रू स्ट्रैटेजी है। पैसेंजर एक्सपीरियंस को चेंज करना है, स्टेशंस, ट्रेन्स, सेफ्टी, ये तीन बड़ी चीज़ होती है, राइट? स्टेशन के बारे में बात किया अपन ने, अभी हम ट्रेन की बात करेंगे, उसके बाद में सेफ्टी की बात करेंगे, करेक्ट? तो पहला हमारे ऑफिसर्स का था टिकट कटाया, पहुंचे जर्मनी, पहुंचे जापान, पहुंचे फ्रांस, और बड़े बड़े प्रेजेंटेशंस, बड़े बड़े ब्रोशर्स लेके आ गए कि चलो साहब ये ट्रेन सबसे अच्छी है, ये लेके आएंगे, ये इंपोर्ट करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। गए प्रेजेंटेशन, तब मैं नहीं था, प्रेजेंटेशंस करने गए, पीएम साहब ने कहा नहीं भाई नहीं चलेगा, ये आपको ट्रेन इंडिया में ही डिज़ाइन करनी पड़ेगी और हमारे ही लोग डिज़ाइन करें, हमारे ही लोग उसको मैन्युफैक्चर करें। चैलेंज, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, बिकॉज दुनिया में केवल 8 कंट्रीज ऐसी है आज की तारीख में जिन लोगों ने 160 kmph से ऊपर की ट्रेन्स बनाई है। ओनली 8 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आसान नहीं है। वंस यू मूव बियॉन्ड 120 किलोमीटर्स, सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, सारे के सारे पैरामीटर्स एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। 150 तक, 120 तक कोई भी कर देता है डिज़ाइन, 120 के बाद में 180 बिकम्स बिग चैलेंज, और 180 के बाद में 300 बिकम्स वेरी बिग चैलेंज। तो ये दो बड़े बड़े थ्रेशोल्ड्स हैं जिसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। तो लगे लोग काम करने में लगे, एंड टाइम लगा 1.5 साल इज नॉट, मतलब जनरली ऐसी चीज़ को डिज़ाइन करने में 4 साल 5 साल भी लग जाते हैं। 1.5 साल के अंदर अंदर पहली ट्रेन निकली, ये पहली ट्रेन चली एंड इट वॉज सुपर हिट। दूसरी ट्रेन निकली, इट वॉज अगेन सुपर हिट। देन वी हैव टू टेस्ट, बिकॉज कस्टमर पैसेंजर्स का मामला है, सेफ्टी है, उसकी मेंटेनेबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने की होती है, राइट? वो सब करते करते अभी जो वंदे भारत सेकंड फेज उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना रोटेटिंग चाहता है। ट्रेन्स, ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। हमारी वंदे भारत से कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी एवं सुविधा को मिल रहा विस्तार। ये देखना 180 kmph पे गाड़ी चल रही है, और ये पानी का गिलास देखो भाई, फेविकॉल से नहीं चिपकाया हुआ है। ये पानी का गिलास नहीं हिला, लेकिन वंदे भारत सारी अभियान का दुनिया हिल गई। अक्षरों से अंकित होगा यह पन्ना इतिहास का। 18 देशों में इसके बारे में आज स्टोरी वंदे छप चुकी है भारत। अभी। 18 कंट्रीज के
नेशनल न्यूज़पेपर्स में आमची वंदे भारत, इसके बारे में स्टोरीज छप चुकी है 18 कंट्रीज में। और मैं आपको गारंटी देता हूं, ये पीएम साहब का जो विजन था, इस विजन का रिजल्ट क्या आएगा? 3 साल के अंदर अंदर इंडिया विल बिकम अ मेजर रेलवे टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर। आज तक हम इंपोर्ट करते थे। माइंडसेट चेंज हुआ है, टोटल माइंडसेट चेंज हुआ है। आज इस टीम के इंजीनियर्स से, टेक्नीशियंस से बात करते हैं, वेल्डर्स से बात, मैं तो 3 साल पहले तक खुद वेल्डिंग करता था, तो वेल्डर्स से बात करते हैं, सबसे बात करते हैं, दे से कि हमको आप परमिशन दो, हम 220 kmph की ट्रेन डिजाइन करेंगे। दैट कॉन्फिडेंस पीपल हैव गॉट नाउ। ये चेंज होता है माइंडसेट में, बड़े काम करने की इच्छा शक्ति से। इसका सारा का सारा जो आपने कहा ना कि बिल्कुल झटके नहीं, बिल्कुल कुछ ग्लास हिली नहीं, इसका रीजन है ये बोगी की डिजाइन। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन। जो जैसे ट्रक में चैसी होता है, कोच, ट्रेन में कोच होता है, ऊपर नीचे बोगी होती है। इस बोगी के अंदर व्हील्स है, गियर्स है, मोटर इसके ऊपर बैठती है, और ये है एयर स्प्रिंग। ये वाले आप देख रहे हो, तकिए जैसी दिख रही है। इट्स एक्चुअली लाइक अ कुशन which absorbs all vibrations and makes the passenger experience totally world class, totally world class. Noise level aircraft में जितना noise level है, उसका 100th 100 गुना कम noise level है. It has been measured. Actual measurements किए हैं decibels में, actual measurements किए हैं, और उसके technical publications बन रहे हैं अभी. एयरक्राफ्ट से 100 गुना कम। मतलब जब पीएम साहब ने इसको, ट्रेन को लॉन्च किया था गांधीनगर से मुंबई के बीच में, तो जैसे कोई भी टेक्नीशियंस और जो उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, वी नोटिस्ड, खड़े हैं फोटो खिंचवा रहे, तो जैसा ये स्टेज पे कंफर्ट है, जमीन पे कंफर्ट है, वैसा कि वैसा कंफर्ट ट्रेन के अंदर था। एक बार भी किसी ने ऊपर वो मतलब हिलने डुलने के चक्कर में, गिरने के चक्कर में वो ऊपर वाला हिस्सा नहीं पकड़ा, ना जमीन, ना कोई सीट को पकड़ा। इमेजिन, दैट्स द लेवल ऑफ कंफर्ट इन दिस एंटायर ट्रेन। और इसमें जनरली ये ट्रेन की, ये बोगी की डिजाइन होती है, उसमें इंजीनियर्स कितने यहाँ पे, कोई है इंजीनियर है इंजीनियरिंग से जुड़े हुए? मार्जिन, डिजाइन का जो मार्जिन कहते हैं हम, राइट, 3 मिलीमीटर का मार्जिन होता है ग्लोबली। इसमें हमने डिजाइन किया लेस देन 1 मिलीमीटर। पहले कहा सबने यार पागलपन है, जर्मनी में 3 मिलीमीटर का होता है, आप यहाँ क्यों 1 मिलीमीटर से हमको बोलते हो? लेकिन देखो, अपने को अगर एक्सपोर्ट चीज बनानी है तो इट हैज टू बी बेटर इन क्वालिटी एंड लोअर इन कॉस्ट, तभी जाके एक्सपोर्ट होगा, राइट? उस फिलॉसफी के साथ इसको आगे बना रहे हैं, राइट? आई विल कम टू थर्ड पार्ट, सेफ्टी, कवच। अगेन अ वेरी बिग लीप ऑफ फेथ। इंडिया में कोई सेफ्टी से रिलेटेड चीज बन ही नहीं सकती, ऐसा सोचते थे। सेफ्टी है तो जाओ भाई यूरोप से लेके आओ, जब जापान से लेके आओ। कवच बनाया, अगेन पीएम साहब ने कहा कि डिजाइन इंडिया में होना चाहिए, बनना चाहिए अपने इंजीनियर्स के द्वारा। ही सेट दैट एज अ बेंचमार्क। तो जब पीएम साहब ने बेंचमार्क ही सेट कर दिया, देन एवरीबॉडी स्टूड अप टू दैट चैलेंज, स्टार्टेड क्रिएटिंग थिंग्स। और जब क्रिएट हुआ तब ये बना कवच। ऑटोमेटिकली एक ट्रैक पे अगर 2 ट्रेन आमने सामने से आ जाए, ये उनको ऑटोमेटिकली रोक लेता है। इस टेस्टिंग में मैं खुद बैठा था एक ट्रेन में, और दूसरी ट्रेन में बैठे थे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। सेम ट्रैक पे 2 ट्रेन आ रही है, 100 kmph से ज्यादा की स्पीड पे। देखना क्या होता है। The Kavach system gets signal of a train approaching from front and starts braking automatically. नॉच लीजिए, नॉच ले रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गाड़ी बढ़ने नहीं दे रहा है। कवच रोक रहा है। Both locos successfully brake and automatically stop at almost एक साथ आते 400 meter distance. एग्जैक्टली एट 400 मीटर्स दोनों ट्रेन अपने आप रुक जाती है। बॉस, आई मीन इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। ऐसी टेक्नोलॉजी पूरे नाउ, अभी थोड़े दिन पहले एक ग्लोबल कंपनी के सेफ्टी के जो हेड हैं, ग्लोबल रेल कंपनी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी कंपनी का, उसके सेफ्टी के हेड आए, बोले कि वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट हेविली इन कवच बिकॉज वी नो दैट वी कैन डू द एंटायर नॉर्थ अमेरिकन मार्केट, वी कैन डू द एंटायर साउथ अमेरिकन मार्केट, वी कैन टेक द एंटायर ऑस्ट्रेलियन मार्केट बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. दैट्स द पावर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी.
अब आता हूं मैं बुलेट ट्रेन पे। टोटली नए तरीके का काम करने का एकदम नया तरीका। मुंबई से पहले थोड़ा सा, जब तक ठाकरे साहब थे उनको इंटरेस्ट नहीं था किसी डेवलपमेंट के, किसी काम में उनको इंटरेस्ट नहीं था, उनका अलग ही था सेटअप। लेकिन जैसे ही चेंज हुआ, शिंदे साहब ने आते ही विद इन फ्यू वीक्स परमिशन दे दी सारी कंप्लीट। तेजी से इस पे काम चल रहा है। जब भी मैं देखता हूँ प्रेजेंटेशन, ये हमेशा कुछ न कुछ नया नंबर आता है। पहले 148 किलोमीटर्स था, 152 किलोमीटर्स के पिलर्स इसके बन चुके हैं। 152 किलोमीटर्स कंटिन्यूसली, बड़े बड़े यार्ड्स, कास्टिंग यार्ड्स, बिग मशीन्स, टोटली न्यू वे ऑफ वर्किंग। ये 40 मीटर का 1100 टन का गर्डर एक बार में बनता है। इट्स मैसिव, टोटली न्यू वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग। ये आपका ट्रांसपोर्टर है, 216 व्हील्स है इसके, गर्डर इसके ऊपर रखते हैं, ये आगे जाता है और आप देख रहे हो ना ये दोनों पिलर्स, अब ये गर्डर सीधा का सीधा इसके ऊपर एक साथ रख दिया जाएगा। इट्स फिनोमिनल, इट्स अ टोटली न्यू वे ऑफ वर्किंग। इस तरह का काम करने का टेक्नोलॉजी केवल 2-3 देश में है बस, और कहीं नहीं है। ये बहुत एकदम नई, और सबसे बड़ी बात ये जितनी भी मशीनें हैं ना, एक आध बाहर से लाए, उसके बाद में फिर सारी इंडिया में बनाई, कंप्लीट सारी इंडिया में बनी है सारी मशीन्स। एक बार लाए सब बाहर से, फिर तो क्यों साहब, इंजीनियरिंग कंपनीज अपनी वी आर गुड। ये देखो, इसमें छोटा सा एक वीडियो आएगा। सब जगह स्टेशंस बन रहे हैं तेजी से, कंप्लीट ब्रिजेस बन रहे हैं। इसमें आपको मैं दिखाना चाहता था केवल ये कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी के बारे में। कंप्लीट इतना बड़ा गर्डर, मतलब 1100 टन का, मतलब 50 जो ट्रॉले होते हैं, बड़ी वाली ट्रक होती है, 50 वैसी ट्रक्स में जितना सामान आता है ना, उतना एक अकेले इसका वजन है। इतना बड़ा ये गर्डर, उसको पूरे के पूरे गर्डर को एक साथ कास्ट करते हैं और उठाते हैं, उठा के लेके गए जहाँ पे पिलर्स है ना उसके पास लेके जाएंगे। ये पिलर्स है, पिलर्स के पास लेके आ गए, ऊपर उठाया इसको, और वो जो ट्रांसपोर्टर है, कनखजूरा नहीं होता था बचपन में हम कहते थे, वैसा ही है ये ट्रांसपोर्टर, कनखजूरे जैसा कट 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 चलता है आराम से। वो गया उसके ऊपर, आगे लेके गए, और फिर पूरा का पूरा गर्डर एक साथ, देखो नीचे गाड़ियां चल रही है, नीचे दिखेगी थोड़ी, कभी आराम से गाड़ियां चल रही, लेकिन पूरा का पूरा आराम से इसको है ना, मजेदार। ये काम करने का नया तरीका है, ये नया भारत है। ये देखो, इसकी स्पीड देखो काम की। ये पिक्चर है नवंबर 22 का, ये पिक्चर है नवंबर 22 का, ये पिक्चर है दिसंबर 22 का, और ये पिक्चर है जनवरी 22 का। पीएम साहब ऐसे हमको सोने नहीं देते खूब काम कर रहे हैं, उनको बड़ा मजा आता है काम देखते हैं। आई विल कम टू डिजिटल कनेक्टिविटी। मैसिव रिफॉर्म किया प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 21 में टेलीकॉम सेक्टर में। इसका इम्पैक्ट आज दिख रहा है। टावर की परमिशंस जो 235 दिन एवरेज लगती थी रिफॉर्म से पहले, आज एवरेज 7 डेज हो गई है, और उसमें से 85% टावर परमिशंस इंस्टेंटेनियस है। पेमेंट का बटन दबाया आपने, एंटर दबाया, और सामने परमिशन आ जाती है। इट्स दैट गुड। अभी तो इंडस्ट्री बोल रही है कि थोड़ा रुक जाओ हम लोग कैचअप कर लें। वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक ग्लोबल कंपनी एरिक्सन के सीईओ ने कहा, इंडिया इज अहेड ऑफ द वर्ल्ड इन 5G रोल आउट। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का कोट है। हम लोगों ने टारगेट लिया था 31 मार्च तक 200 सिटीज को कवर करेंगे। बताओ अब तक कितनी सिटीज कवर कर चुके हैं? सिटीज एंड टाउन्स कितने कवर कर चुके हैं? 300 ऑलरेडी। 31 मार्च अभी दूर है। So that's the speed at which it's moving. But what gives the biggest satisfaction is, जैसे वंदे भारत बनी, जैसे कवच बना, वैसा ही इंडिया टेलीकॉम स्टैक। आज दुनिया में सिर्फ 5 कंपनीज ऐसी है, 5 कंपनीज जिसके पास एंड टू एंड टेलीकॉम टेक्नोलॉजी है, और सारी दुनिया उन्हीं से खरीदती है। पीएम साहब ने टारगेट रखा कि अपना खुद का टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टैक होना चाहिए, बिकॉज स्ट्रैटेजिक है, बिकॉज उसका ग्लोबल इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है। बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, सारी दुनिया की ताकतें जुट गई उसको रोकने में।
लेकिन ये टेक्नोलॉजी स्टैक बन के रेडी हुआ और पहले उसको 10 लाख कॉल्स के लिए टेस्ट किया, फिर 50 लाख कॉल्स के लिए टेस्ट किया और अभी बीते दिसंबर में, पिछले दिसंबर में इसको टेस्ट किया 1 करोड़ साइमल्टेनियस कॉल्स। और आज दुनिया में कम से कम 10 या 12 देश ऐसे हैं जो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं। ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी, मैसिव। आई थिंक आई एम रनिंग, I'll take a few minutes कि कोविड में जो सारी दुनिया में जो प्रॉब्लम आई इकोनॉमी पे, उसको बाकी देशों ने कैसे टैकल किया और हिंदुस्तान ने कैसे टैकल किया। बिकॉज दिस ऑल कनेक्ट्स विद व्हाट हैज बीन सेड बिफोर। रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना इन्वेस्टमेंट, कल गडकरी साहब आएंगे, वो हाईवे के बारे में बताएंगे किस तरह से हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट्स, टेलीकॉम सब में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिससे कि आप सबकी ज़िंदगी में एक मूलभूत डिफरेंस आए, एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशनल डिफरेंस आए। पीएम साहब ने बहुत ही सोचे समझे तरीके से इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी लगाई। देखो, किसी भी देश की पूंजी लिमिटेड होती है, जैसे अपनी खुद की पूंजी, घर में अगर हम बात करें, फैमिली में बात करें, पूंजी लिमिटेड होती है। उस पूंजी को कोई कैसे यूज़ करता है, कोई कैसे यूज़ करता है। एक तरीका है कि खाए पिए उड़ा दिया, राइट। वेस्टर्न रिच कंट्रीज उन्होंने जो किया इसमें, दे सेंट आउट चेक्स। चेक से कोई 3rd मोबाइल फ़ोन खरीद रहा है, 5th टीवी स्क्रीन खरीद रहा है, राइट। दैट वाज व्हाट इट वाज। काम करना बंद कर दिया लोगों ने। इन्फ्लेशन ग्रीव लाइक दिस, 40 साल में सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन, राइट। पीएम साहब ने बहुत क्लियर पॉलिसी लगाई इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी, एंड दैट इज व्हाट इज पेइंग अस टुडे। आज हमारा इन्वेस्टमेंट जीडीपी में एक स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है। इन्वेस्टमेंट जो 3-3.25 लाख होता था, आज 10 लाख करोड़ के आसपास पहुंचा है। आई कैन टॉक अबाउट इट इन गुड डिटेल। 75% के आसपास फैक्ट्री यूटिलाइजेशन बढ़ गया है। जो इंडस्ट्री बिजनेस से है वो लोग सब, दे विल वाउच फॉर दिस। एमएसएमईज में बहुत, और सबसे बड़ी बात रोजगार, सबसे बड़ी बात रोजगार। जो कोविड के पीरियड में, ये ईपीएफओ का डेटा है, एनीबडी कैन चेक इट, दिस इज ऑल वेरीफाइबल डेटा। 6 लाख पर मंथ एडिशन होता था, नेट एडिशन, वो आज 15 लाख पर मंथ ऑन एन एवरेज चल रहा है लास्ट 8 मंथ से। That's a clear outcome of the good economic policy that PM adopted for growth of the country. हर एक व्यक्ति के लाइफ में चेंज आए, कोई भी एरिया ऐसा नहीं हो जो कि पीछे छूट जाए। पीएम साहब हमेशा यही कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कभी ये नहीं कि भेदभाव, हमेशा ये सोचना देश एक है और हम सब मिलके इसके लिए काम करें। थैंक यू। थैंक यू। I think the applause says it all. Thank you very much, Mr. Vaishnav. आपने हमें एक विजन दिखाया है फ्यूचर का, that we're all excited to be part of. But हम इस चर्चा को आगे जारी रखना चाहेंगे. I'd like to invite Mr. Veer Sanghvi to join the minister on stage and continue the conversation. Can we have the chairs, please, quickly? I keep this on? Should I keep this on or use that one? I just want to begin by saying that I've seen a lot of impressive presentations, and of course yours was impressive, but it was much more than that. It was inspirational, and I think that's the way the audience is reacting.
Thank you so much. And it was done. You took very complicated ideas and you explained them very simply. And you explained them in a way that every person felt proud of what you were doing. Thank you so much. Thank you so much. आप लोग patiently सुने. Thank you for that. Okay, let me start with sort of the obvious questions, which is, how did you do it? You've taken the railways, which is in many countries and much of the world a sunset sector, and you've turned it into a sunrise sector. You've taken the railway ministry, where I don't think I'm giving away any secrets. It's a political ministry. There's never been a technocrat in charge. It's always been the bureaucrats who've run it. And you're running it like what? Like the IT ministry, like something that's sunrise, new technology, new hopes. How did you make that transformation? रेलवे में तो बहुत क्लियर है कि प्रधानमंत्री जी का बहुत एकदम लाइक ही नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट रेलवेज. जहाँ पे हम लोग सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा उनको पता रहता है. ईच एंड एवरी स्टेप ही इज गाइडिंग अस. गुड थिंग इज ही हैज रिपोज्ड फेथ because railways is actually a technical ministry. It is, yeah. It is not a ministry which can be taken as a regular political ministry. इसमें बहुत ध्यान से अंदर डीप में जाना पड़ता है. ट्रैक्स की मेंटेनेंस कैसे होगी, सेफ्टी का सिस्टम है तो 10,000 ईयर्स में एक बार फेलियर का मोड हो सकता है, वो सब चीज़ें, these are very technical things. So I think this has been a good challenge and I thank Honorable Prime Minister for putting this trust in running this ministry and his guidance, which comes again and again on various aspects. For a country of our size, there is no other way to transform the economy than transforming railways. So that's why that emphasis has to be there on railways. But you know, the perception, and I've spoken to previous railway ministers who say that passengers are not important. Railways is all about freight. Passengers are a sideline. Your perception and the way in which you explained it is completely different. You made it passenger-centric. Railway stations become like city hubs. Passengers have a completely different experience. So that's a shift in terms of the mindset, isn't it? You're right. इसमें पीएम साहब ने बहुत क्लियरली कहा कि हमें कंप्लीट पैसेंजर एक्सपीरियंस को चेंज करना है. सी 800 करोड़ पैसेंजर्स तो रेलवे आज कैरी कर ही रहा है. इन एंड आवर डिमांड इज टुडे 1100 करोड़. So even now there is a gap of about 300 crore passengers per year. That is the gap in demand and supply. So अभी तो हमको 800 crore से और ज़्यादा passengers लेने हैं. Transport economics अगर आप देखो, up to 250 kilometers तक road is very good. 250 से 1000 kilometer तक rail is the best mode. और 1000 किलोमीटर के ऊपर aeroplane is the best mode. Air is the best mode. तो अपने देश में जहाँ 140 करोड़ की जनसंख्या के आसपास हम पहुँचने वाले हैं, अपने को इन तीनों मोड्स को एक साथ ग्रो करना पड़ेगा. वी कैन नॉट डू वन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर. जैसा जो बड़ी कंट्रीज़ है, बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्रीज़ हैं, उनमें से किसी का भी एग्जाम्पल देखें, दे हैव ऑल एक्चुअली डन दिस थिंग. तीनों पे लगातार फोकस करके तीनों मोड्स को बढ़ाया. तो रेलवे उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. और दूसरा, रेलवे का सोशल ऑब्लिगेशन भी बहुत है. जितना लोअर इनकम और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उन सब के लिए रेलवे पहले है. इसीलिए प्राइवेटाइजेशन को बाहर निकाला इक्वेशन से. बहुत क्लियर फोकस हुआ कि इसको इम्प्रूव करना है, पहले उसी पे फोकस करो, जिससे कि हमारे पैसेंजर्स जो लोअर इनकम और मिडिल क्लास इनकम, मिडिल इनकम ग्रुप्स की फैमिलीज़ हैं, उनको एक बेटर एक्सपीरियंस मिले. You've got 3 very crucial ministries. Which of them has been, and all of them really were turnaround ministries. None of them was in great shape when you took over. Which has been the most difficult? Complexity सबसे ज़्यादा टेलीकॉम में थी, because there was a huge series of litigations and very complex, very long legacy of litigation. Complexity उसमें ज़्यादा थी, मेहनत रेलवे में ज़्यादा पड़ती है. IT में luckily we have a very good private sector which is working, and manufacturing में, electronics manufacturing में we have had very good success in mobile phone and now other components in this entire thing. So उधर कम एफर्ट में ज़्यादा काम हो जाता है, रेलवे में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, बिकॉज इट्स अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. टेलीकॉम में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है. You've been listening to people. We heard Liz Truss this morning, and you've been listening to experts, and the general view is that this is a moment of opportunity for India, because the West is more and more concerned about China, is eager to be less dependent on China, wants an alternative.
and the only alternative available is India. Do you see that opportunity? एब्सोल्युटली, सेक्टर आफ्टर सेक्टर. मैं तो आपको कह रहा हूँ कि टेलीकॉम में और रेलवे में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, लाइक मैनी अदर सेक्टर्स, इंडिया विल बिकम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर विद इन दी नेक्स्ट 2 to 3 years. आज आप मोबाइल फ़ोन में देखो, 10 साल पहले देश में जितने मोबाइल फ़ोन यूज़ होते थे 99% इम्पोर्टेड होते थे. आज का नंबर बताओ. आज देश में ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ होते हैं पहले से, 10 साल पहले से, लेकिन आज 99% मेड इन इंडिया है. दिस इज़ अ डिफरेंस. ये 99% इम्पोर्ट होते थे, आज 99% मेड इन इंडिया है. और इस साल मोबाइल फ़ोन का एक्सपोर्ट का नंबर आपको जान के और ज़्यादा खुशी होगी. बताइए. $10 billion. Billion. $10 billion. मतलब 82,000 करोड़ का रुपए का इस साल मोबाइल फ़ोन का एक्सपोर्ट है. सो अब सारा का सारा इकोसिस्टम इधर शिफ्ट हो रहा है. सो डिस्पाइट अगर ये जियो पॉलिटिकल चीज़ें नहीं आती, फिर भी जो रिफॉर्म्स प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जो किए हैं, जो स्टेबल पॉलिसी दी है, उस पॉलिसी से आज दुनिया भर में इंडिया के बारे में एक बड़ा ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हुआ है. तो ये जियो पॉलिटिकल टेंशन्स नहीं आते तो भी ये सारी की सारी इंडस्ट्री इधर शिफ्ट होनी थी इंडिया में. जियो पॉलिटिकल से अपने को एक्सेलरेशन हो गया. Anyone who saw your presentation today will be inspired and proud to be an Indian. What struck me was that you don't necessarily have to agree with the politics of this government or whatever. Infrastructure, stuff like this is beyond politics, is bipartisan. And by depoliticizing it, you guys have actually broken away from the railway ministry of old, which was all about politics, the telecom ministry, which was mired in corruption and politics. Has that been a deliberate effort? देखो, ये तो पीएम साहब का बहुत क्लियर है कि वो बिल्कुल भेदभाव नहीं करते. आपने देखा 1275 स्टेशन, राइट? ऐसा नहीं कि बीजेपी के स्टेट में 1275 बन रहे हैं, नहीं. पूरे के पूरे देश भर में स्प्रेड आउट है ये 1275 स्टेशन. नॉर्थ ईस्ट में भी बन रहे हैं, साउथ में भी बन रहे हैं, वेस्ट में भी बन रहे हैं, ईस्ट में भी बन रहे हैं, सेंटर में भी बन रहे हैं, नॉर्थ में भी बन रहे हैं. तो ये एकदम क्लियर है पीएम साहब का कि देश पूरा हमारा एक है और इसमें हमें ये नहीं सोचना है कि कौन से जगह पे हमारी पॉलिटिकल बेनिफिट है तो वहाँ करो, ऐसा नहीं. उनका एकदम स्पष्ट है, सबका साथ सबका विकास. दैट इज द फिलॉसफी with which we are all working in the entire team. One of the things you said to me outside was talk about the ministries, don't talk about me. This session is about development, about my ministries. It's not about Ashwini. So I'm going to break my word to you and I'm going to ask you a few questions about Ashwini. Is it true that when you were a collector and when you were in the civil service, not only were you approachable, but when you called meetings, you would sit on the floor, you would make everybody else sit on the floor, that you would break with the traditional hierarchy because you wanted people to feel that you were approachable and accessible? नहीं, वो तो होना ही पड़ता है. मेरे ख्याल से बहुत लोग हैं ऐसे, कोई खास नई बात नहीं है. बहुत अच्छे अच्छे अफसर्स हैं दुनिया में, देश में खूब सारे. कोई एक्स्ट्रा So is that a yes or is that a no? स्पेशल नहीं है. वो आपने किया था. It's true. Sorry? It is true, but you did do नहीं, it. हाँ, ये तो सच है, मैं जमीन पे ही बैठता था. The other thing people say about you is that because you're an engineer, because you come from a technocratic background, nobody can bullshit you. You actually go into the details, you look at every file, you do site inspections, you really are on the job 24/7. Is that true? फायदा तो होता है. Hota hai. And yeah, that is true. Yeah. And तो finally, होता है. people say about you that despite all the stuff we've seen and all the inspiration stuff, that when you're in the ministry, you remain extremely approachable, that if other people come to you with ideas that are different from yours, you're willing to listen. Is that true? नहीं, ये तो होना भी चाहिए. वो तो ओपन माइंड. देखो, मैं आपको बताऊं, लाइफ में मैंने बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे लोग देखे. मैं साहब से भी अभी बोल रहा था कि 20 साल पहले आपसे अटल जी के साथ था, तब मिला था लास्ट. आई हैव मेट विद सो मेनी गुड पीपल, बट इफ यू आस्क मी हु इज द मोस्ट ओपन माइंडेड पर्सन, आई विल पुट दैट नेम एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. मतलब आप 2-2 घंटे के प्रेजेंटेशन लेके जाओगे, इंटेंटली ही विल लिसन, इंटेंटली ही विल एब्जॉर्ब डेटा. इतना डेटा रिच प्रेजेंटेशन होता है तो भी ही विल केयरफुली लिसन टू ईच एंड एवरी पॉइंट एंड मेक श्योर दैट द बेस्ट आउट ऑफ दैट कम्स. तो हर इंसान को ऐसा होना ही चाहिए, ओपन माइंडेड तो होना ही चाहिए.
You've heard how the audience responded to you. We're at the end of our time. So sort of final question. These are Indians who want to be proud of India, who feel proud when they see what you've done, have not always been proud by the things that have happened in our country. What is your message for them going forward? आज जो देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश में एक डेवलपमेंट का, एक ट्रांसफॉर्मेशन का, एक गरीब से गरीब व्यक्ति की ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाने का जो यज्ञ कर रहे हैं, सभी उसमें जुड़िए। थैंक यू। Thank you, Ashwini. Thank you so much. A big hand.